today let's start with chapter number 13, the struggle for freedom. In this chapter, we'll study about struggle for freedom. कैसे कुछ social reformer थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, how they work, and Sir Syed Ahmad Khan, how they work for the freedom. ठीक है? Now, introduction to the chapter. The era of social reform started just after suppression of revolt of 87. The rule of the East India Company came to an end, and administration of India was taken over by the Queen of England. Even though revolt has failed, it sowed the seeds of nationalism among the people of India. Leaders realized that they had to remove social evil from the society. Leaders ने ये सोच लिया था कि हमें जो सोशल इवल है सोसाइटी के उनको रिमूव करना है अचीव देयर गोल्स. अगर आप अपने गोल्स को अचीव करें. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोशल रिफॉर्मर. Social reformers play a significant role in making India a more progressive and forward-looking country. They fought against several social evils जैसे कि सती प्रथा, child marriage, casteism. Many thinkers and reformers like Rajaram Mohan Roy, Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan, and Narayan Guru fought against social evil. They were inspired by modern ideas and education introduced by the British. और ये किससे जो मतलब ये किससे इंस्पायर्ड हुए थे? जो भी मॉडर्न आइडियाज थे या एजुकेशन जो ब्रिटिश लेके आए. ठीक है, ये कुछ लोग थे जैसे मैंने आपको बताया, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान. इन्होंने क्या करा, बहुत सारे सोशल इविल को हटाने की कोशिश, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, इनको हटाने की कोशिश करी. दे फेल्ड दैट द एजुकेशन वुड हेल्प इंडिया टू बिकम प्रॉस्पेरस वंस अगेन. The British of rule in India brought extreme poverty among the Indians. ठीक है, बहुत ज़्यादा poverty हो गई थी. Traders and businessmen wanted to start industries on modern lines, but the Europeans was interested in plantation of tea, coffee, indigo, and there was a great demand for these things in the England. लेकिन जो यूरोपियंस थे वो चाहते थे, वो उनका इंटरेस्ट था कि प्लांटेशन में, टी में, कॉफी में, इंडिगो में, जूट में, क्योंकि जिनकी जो डिमांड है इन चीज़ों की इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा. They led to the formation of association institution schools. The writers began to publish their ideas in a form of newspaper writings. ठीक है, जो राइटर्स थे वो अपनी न्यूज़पेपर राइटिंग के फॉर्म में अपने आइडियाज़ को लिखते थे. पब्लिक मीटिंग्स पर हेल्ड, ठीक है, एंड जिससे जो रूलर्स थे उनकी प्रॉब्लम को अटेंशन कर पाए, देख पाए और सॉल्व कर पाए. And people thought that freedom from the British rule was the most for solving their problem. ठीक है, अगर people ने कहा अगर freedom from, अगर आपको ब्रिटिश का से जो freedom चाहिए तो किससे अगर जब भी उनकी problem solve हो. The Indian National Congress, AOU, एक retired ICS officers थे. इन्होंने INC फाउंड करी 1885 में. The aim of the organization was to draw attention of British rule towards the difficulties and demands of the freedom. कि ब्रिटिश का जो अटेंशन है वो किसकी तरफ करा जाए, डिफिकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल. और जो पहला सेशन हुआ कांग्रेस का वो दिसंबर 28, 1885 में हुआ मुंबई में, और WBC बनर्जी प्रेसिडेंट थे, और जो AOU थे वो क्या थे, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी. 22 delegates so थे all the parts of India. They have attended the session, and every year session of the Congress was held in different city. During first 20 years, Congress made moderate demands. इन्होंने कुछ moderate demands रखी कांग्रेस ने, जैसे spread of education, reduction in military expenditure, employment of Indian in higher offices, formations of council, दोनों सेंट्रल के लेवल पे थे, स्टेट लेवल पे. ठीक है, सम प्रोमिनेंट लीडर जो कांग्रेस के जैसे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, बबरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, MG राणा और मदन मोहन वाजपेयी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर थे. सम लीडर ऑफ द कांग्रेस बिलोंग इन द मेथड ऑफ पेशेंस एंड पर्सुएशन. दे वर मॉडरेट्स. तो जो पेशेंस और पर्सुएशन में बिलीव करते थे वो क्या थे, वो मॉडरेट थे. जैसे आपके बाल गंगाधर, ऊपर वाले एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लाजपत राय. ठीक है,
एंड बिपिन चंद्रपाल ये रेडिकल्स थे। ये क्या चाहते थे कि दे वांटेड टू इन्वॉल्व मासेस ऑफ इंडिया इन अ स्ट्रगल फ्रीडम। तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने बोला कि जो फ्रीडम है मेरा बर्थ राइट है और उसको लेके रहूंगा। एंड ही रोट इन मेनी आर्टिकल्स अगेंस्ट ब्रिटिश राज इन हिज पेपर केसरी। एज अ रिजल्ट ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखता था, ठीक है, उनका न्यूज पेपर था केसरी, ठीक है, और उस वजह से उनको अरेस्ट भी कर लिया था बहुत बार। नाउ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात करते हैं। कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी एंड इट्स मूवमेंट स्प्रेड इवन इन कॉमन पीपल। The British did not want the Congress to get success with the aim of uniting the people of India. ब्रिटिश चाहता नहीं था कि ब्रिटिश जो थे वो चाहते नहीं थे कि कांग्रेस सक्सेस हुई। कांग्रेस का they made several laws to suppress the freedom movement. Initially they adopted the policy of divide the Bengal into two parts. इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी कि बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1905 में ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि बंगाल को डिवाइड किया जाएगा दो पार्ट्स में, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वन पार्ट में क्या होंगे, हिंदू होंगे, और दूसरे पार्ट में क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। और जो ये एंटी पार्टीशन एजिटेशन था उसने अजीम करा मिलिट्री को 7 अगस्त 1905 में, when thousands of people at a meeting in Kolkata resolved to boycott British food. इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश फूड को बायकॉट करना स्टार्ट करा। Until the participation proposal was withdrawn, it was during the movement that स्वदेशी और यूज ऑफ इंडियन गुड्स, ठीक है, आपको क्या करना है, स्वदेशी और इंडियन गुड्स का यूज करना है और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना है। ये एक इंटीग्रल पार्ट बना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी इंडियन लीडर्स आस्क्ड द पीपल्स। इंडियन लीडर्स ने कहा कि आप ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करो और इंडियन गुड्स का यूज करो। वुमेन एंड स्टूडेंट टुक अ लीडिंग पार्ट इन इट। द ब्रिटिश क्लोथ्स वाज बर्न्ड इन हिट्स एंड द स्वदेशी मूवमेंट सून स्प्रेड टू ऑल अदर पार्ट, ठीक है। बॉम्बे, पुणे, मद्रास में फैल गया। जो ब्रिटिश क्लोथ्स जो थे उनको बर्न कर दिया, ऐसे हीट लगा के, चट्टा लगा के उसको बर्न कर दिया। And the British rule could not suppress this movement and finally abolished the scheme to partition of Bengal in 1911. The scheme थी partition of Bengal की 1911 में वो abolish कर गई और इसने help करा for establishment of textile mill, banks, hosiery, tobacco और कुछ factories established. Next is the revolution. The movement against the participation of Bengal led to split of in the Congo. ठीक है, जो मूवमेंट थी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसने क्या करा, कांग्रेस को स्प्लिट करा 1907। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या करा, पार्टी को छोड़ दिया। इन्होंने मास मूवमेंट स्टार्ट करी टू अचीव टोटल इंडिपेंडेंस। और कुछ यंग पीपल थे जिन्हें हम रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, फेल्ट दैट मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स हैड नॉट डन इनफ टू अचीव फ्रीडम। वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस। उन्होंने कहा कि वायलेंस से ही, वायलेंस को किसके साथ लड़ना है, वायलेंस से ही लड़ना है। एंड रिवॉल्यूशनरी लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सवाकन और अशफाकुल्ला खान एंड सुखदेव, वीके दत्त एंड मेनी अदर जॉइंड द स्ट्रगल एंड डाइड फॉर मदरलैंड। 15-year-old boy खुदीराम बोस, he was hanged by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, इनको हैंग कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया था। And some Indians went to other countries of the world to wage a struggle for achieving independence. Madam Kama went to Switzerland, Narendranath went to Germany, और जो राजा महेंद्र प्रताप थे और मौलाना बरकत थे उनको अफगानिस्तान भेजा गया। और 21 अप्रैल 1931 में एक सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे आपने देखा होगा, इंडियन असेंबल्ड हुए एंड फॉर्म द गदर पार्टी। और जो एम था गदर पार्टी का वो क्या था, टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल से हमें क्या होना है, रिड होना है, हटना है। दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडियन वॉज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल। एट दिस स्टेज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट, और वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ फर्स्ट 1940 में। मैनी इंडियंस हैव द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट द वॉर। दे एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर द वॉर ब्रिटिश वुड गिव मोर फ्रीडम, बट डिड नॉट हैपन। उन्हें लगा कि वॉर के बाद भाई भैया हमें और फ्रीडम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश मेड द लॉज टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ऑन इंडिया। उन्होंने ऐसे लॉज बनाए
कि वो अपना इंडिया पे होल्ड बनाते हैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपना और दबदबा बना लिया इंडिया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।